कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी है. D block elements and ions have great tendency to form complex formation due to following reasons. First, small in size. Second, high positive charge. Third, presence of vacant orbitals. And fourth, variable oxidation states. सेम वही पॉइंट है जो हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डिस्कस किए थे. ओके, transition elements or ions have great tendency to form complex compound due to small in size, high positive charge, presence of vacant orbitals, and shows variable oxidation states. Next point, catalytic nature. Transition metals and their compounds. Transition metals and their compounds act as catalysts. Because they have vacant orbitals which provide active surface where reactant molecules are absorbed and react to each other, then form product. So they have great tendency act as catalyst. For example, hydrogenation of oil in presence of nickel, palladium or platinum, great tendency to act as catalyst due to presence of vacant orbital. They provide active surface where reactant molecules are adsorbed and convert into product. For example, hydrogenation of oil in presence of nickel, platinum or palladium. तो जो अपने पास ऑयल है उसको फैट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, उसका रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम डी ब्लॉक एलिमेंट्स है.
oxidation of sulfur dioxide in sulfur trioxide, presence of vanadium pentoxide. ये जो रिएक्शन है इसमें वैनेडियम पेंटॉक्साइड क्या है, कैटलिस्ट है. इन हैबर प्रोसेस N2 plus 3H2 is 2NH3. Iron act as catalyst. ठीक है. तो जो अपने पास डी ब्लॉक एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, वो कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं. उसका रीजन क्या है, क्योंकि इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं. और जब वैकेंट ऑर्बिटल्स होगा तो उस केस में इनकी वैलेंसीज फ्री होती है और ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को एक्टिव सरफेस प्रोवाइड करते हैं. जो वैकेंट ऑर्बिटल्स है इट मींस इनके अंदर बॉन्डिंग की टेंडेंसी होती है. तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, एक्टिव सरफेस प्रोवाइड करते हैं. यहाँ पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो है वो इनके साथ बॉन्डिंग करके इसके ऊपर एब्सॉर्ब हो जाएगा और फिर आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है. जो बेटा वीडियो क्लियर नहीं है तो हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो. तो मेरे पास मोबाइल के अंदर क्लियर फोटो है, क्लियर वीडियो है, कहीं पे ब्लर नहीं हो रहा है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. Transition metals and ions or their compounds. Transition metals, their ions or compounds shows various magnetic properties. Shows various magnetic properties. First, पैरामैग्नेटिक, जो हमने डी ब्लॉक फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस करते हैं अपन. फर्स्ट पैरामैग्नेटिक, मैग्नेटिक बिहेवियर डिस्कस कर रहे हैं अपन. ट्रांजिशन मेटल, आयंस और देयर कंपाउंड्स shows various magnetic properties. First, paramagnetic. D block elements or ions. D block elements or ions which have unpaired electrons. Placed in outer magnetic field. Placed in outer magnetic field, then they behave as magnet and attract magnetic field. After removing magnetic field, they lost their magnetic behavior. Called paramagnetic substance. The magnetic moment of substance
the magnetic moment of substance can calculate by following formula. Calculate by following formula. After removing magnetic field, they lost their magnetic behavior. After remove magnetic field, they lost their magnetic behavior, called paramagnetic substance. Paramagnetic substance. Magnetic moment of substance. Magnetic moment of substance can calculate by following formula. Calculate by following formula. Mu equals to root n multiply n plus 2, root n multiply n plus 2, where n equals to number of unpaired electron. Number of unpaired electron. For example, calculate the magnetic moment of Fe plus 3 ion. Then first determine the number of unpaired electron. In Fe, electronic configuration 3d6 4s2. When it's converted into plus 3 ion, then 3 electrons removed from outer orbitals and the electronic configuration 3d5 4s0. There are 5 unpaired electrons. So magnetic moment equals to n value 5 plus 2, then root 35. Unit Bohr magneton. Bohr magneton. अब देखो इनके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन है और जहां भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन का वो क्या करेगा, मैग्नेटिक मोमेंट शो करेगा, मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा. ठीक है. रीजन क्योंकि जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज स्पीशीज है. और ये चार्ज स्पीशीज जब अपने एक्सिस पे रोटेट करता है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है. ठीक है. उसके अराउंड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है. और ये जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है ये क्या करता है, आउटर मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करता है. तो अगर सब्सटेंस को आउटर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करें तो वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह से अट्रैक्ट करेगा. ठीक है. तो ये होता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस. अब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कैसे कैलकुलेट करें, तो फॉर्मूला अपने पास है म्यू इक्वल्स टू रूट n मल्टीप्लाई n प्लस 2. तो क्या होता है, जब आउटर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो आउटर मैग्नेटिक फील्ड और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेम डायरेक्शन में होता है, इसलिए मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा. बट मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव करते हैं तो उस केस के अंदर यहाँ पर जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो इतना सफिशिएंट नहीं है कि वो उसको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करे, इसलिए अपने पास केवल ये आउटर मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक तरह बिहेव करता है. सेकंड नोट करो, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस. डायमैग्नेटिक सब्सटेंस. डायमैग्नेटिक सब्सटेंस नोट करो, substance which have no any unpaired electron, substance which have no any unpaired electron, no any unpaired electron, placed in magnetic field, placed in magnetic field, then it's repel, outer magnetic field, repel outer magnetic field called
called diamagnetic substance, called diamagnetic substance, diamagnetic substance. The magnetic moment of this substance, magnetic moment of this substance is zero. Magnetic moment of this substance is zero. ठीक है, तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है उसमें कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, पेयर के फॉर्म में, और जब पेयर के फॉर्म में है तो अगर क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन का स्पिन हो रहा है उससे अगर मैग्नेटिक मोमेंट अपर डायरेक्शन में है तो एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन जो होगा उससे क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल कर देगा, और कैंसिल कर देगा इसलिए यहाँ पर नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा। तो हमने क्या डेफिनेशन नोट किया, substance which have no any unpaired electron placed in magnetic field then repel magnetic field, then these substance repel magnetic field and their magnetic moment is zero, called diamagnetic substance. Due to presence of pair electron, these electrons cancel out the magnetic individual magnetic moment of electrons, cancel out the individual magnetic moment of electrons। ठीक है, तो ये जो अपना इलेक्ट्रॉन है ये अपोजिट स्पिन कर रहा है, अपोजिट स्पिन कर रहा है तो एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल कर देगा, इसलिए यहाँ पर नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, जीरो है। अब मैग्नेटिक मोमेंट जीरो है तो उस केस में क्या करता है, ये आउटर मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करता है। So these are called diamagnetic substance. Third one, ferromagnetic substance. Ferromagnetic substance. These substance have permanent magnetic moment, permanent magnetic moment, permanent magnetic moment. When these substance placed in, when these substance placed in magnetic field, placed in magnetic field, then they behave as magnet, then they behave as magnet, and after removing magnetic field, they remains their magnetic properties. ठीक है, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है उसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो मैग्नेटिक तरह बिहेव करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव करते हैं तब भी क्या होता है, उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रहता है एज इट इज, यानी इनके अंदर परमानेंट मैग्नेटिज्म होता है। ठीक है,
पहले सब्सटेंस को बोलते हैं अपन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब देखो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में एक्चुअली होता क्या है, जो अपने पास फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है उनमें डोमेन्स प्रेजेंट होते हैं। फिजिक्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने, डोमेन्स प्रेजेंट होते हैं। और डोमेन्स क्या होता है, डोमेन्स क्या होता है, एक ब्लॉक होता है। किसका ब्लॉक है, अनपेड इलेक्ट्रॉन वाले जो आयंस होते हैं, ठीक है, आयंस विच हैव अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। तो जो अनपेड इलेक्ट्रॉन वाले आयंस हैं उनका एक ब्लॉक बन जाता है, 4 5 6 10 आयंस का एक ब्लॉक बन गया। और इस कंप्लीट ब्लॉक को क्या बोलते हैं अपन, डोमेन्स बोलते हैं, ठीक है। आयंस विच हैव अनपेड इलेक्ट्रॉन्स collectively form a block that called domains. Ions which have unpaired electrons collectively form a block that's called domains. ठीक है, तो यहां पर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर काफी सारे डोमेन्स होते हैं, और ये डोमेन्स होते हैं, इन डोमेन्स का जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होता है इस तरह से। अब जैसे इसको आउटर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, जब आउटर मैग्नेटिक फील्ड में इसको प्लेस करेंगे तो ये जो डोमेन्स का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो सेम डायरेक्शन के अंदर ओरिएंटेड हो जाता है इस तरह से, ठीक है। जो डोमेन्स का मैग्नेटिक मोमेंट है वो सेम डायरेक्शन में ओरिएंटेड होता है, किस केस में, जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं। और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया, इसके डोमेन्स जो है उनका मैग्नेटिक मोमेंट क्या आता है, सेम डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो जाएगा। और सेम डायरेक्शन में ओरिएंटेड होगा तो ये एक दूसरे को रेनफोर्स करेगा, एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग कर देगा और मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। अब अगर अपन मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव भी कर दें तब भी क्या होता है, इनका ओरिएंटेशन सेम रहता है। और सेम ओरिएंटेशन है इसलिए इनका मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है, एक दूसरे को रेनफोर्स करते हैं, इसलिए इनमें परमानेंट मैग्नेटिज्म होता है। समझ में आई बात। डोमेन्स क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स का एक ग्रुप है, ठीक है। अनपेड इलेक्ट्रॉन वाले आयंस जो होते हैं उनका ग्रुप होता है। अब आयंस में अनपेड इलेक्ट्रॉन है और ऐसे काफी सारे आयंस जो है वो मिलकर एक डोमेन बना रहे हैं। तो उस डोमेन में जितने भी आयंस हैं उन सब आयंस का कारण जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो डोमेन्स का मैग्नेटिक मोमेंट है। अब अपने पास सब्सटेंस में काफी सारे डोमेन्स हैं और उन सब डोमेन्स का मैग्नेटिक मोमेंट अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो अपने पास जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है सब्सटेंस का वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। सो दिस टाइप ऑफ सब्सटेंस बिहेव एज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। जनरली आयरन, कोबाल्ट, निकल, दिस मेटल्स जो होते हैं ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह बिहेव करता है, ठीक है। देखो डायमैग्नेटिक के अंदर जो मैंने लाइन रिपीट किया था, शिखा ध्यान से सुनना वापस। Substance which have no any unpaired electrons placed in magnetic field, then they repel the outer magnetic field, ठीक है, then they repel outer magnetic field. So these are called diamagnetic substance. These substance have zero magnetic moment, because the individual magnetic moment of electrons cancel to each other. So net magnetic moment is zero in diamagnetic substance, ठीक है। तो जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं उनमें 3 टाइप्स का प्रॉपर्टीज पॉसिबल है, फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। आपने फिजिक्स में डिस्कस किया होगा ये, और भी होते हैं, एंटी फेरो और फेरीमैग्नेटिक भी होता है, ठीक है ना, बट अपने पास केमिस्ट्री में दिया हुआ नहीं है इसलिए मैं अभी डिस्कस नहीं करेंगे इस चीज के बारे में। तो ये हो गया अपने पास मैग्नेटिक बिहेवियर। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कलर, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, फॉर्मेशन टेंडेंसी ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स एंड एलॉय फॉर्मेशन, और उसके बाद करेंगे हम ऑक्सीडेशन स्टेट। रीजन क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट, हाँ एक्सपेरिमेंट फाइल मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि कल बताऊंगा, मैं आपको सबको सेंड करूंगा ग्रुप के अंदर, 2-3 एक्सपेरिमेंट एक साथ सेंड कर दूंगा, उनको आप प्रिपेयर करना है। फिर नेक्स्ट डे इस तरह से धीरे धीरे करके आपको सारा एक्सपेरिमेंट फाइल जो है वो प्रिपेयर करना है, ठीक है ना।